Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you will be doing good. I am Fawad Ahmed, your science teacher. Okay, from the last 2 weeks, we are in the same unit because it is a lengthy one, and inshallah, this week we will complete it, and next week I will send you the exercise of this unit. So this is a chemistry chapter, so it's a difficult one for you guys. So I have divided it into 3 weeks. I hope you are understanding the concepts of atom. You have understood it in previous 2 weeks. Now we will move on. It's just the overview of the previous topics we have discussed. Also, there are 3 assignments for this chapter. So 2 of them I have already sent you, and one I will send after this lecture. Okay. So previously we have studied about atoms, elements, compounds, and things like that. But now we will go a little bit advanced. So we will start studying ions and bonding. That how these chemical bonds occur in these chemical reactions. So the first one is ions and bonding. What are ions and what is bonding? So ions and bond in an atom, the protons have positive electrical charge. These are balanced by negative electrical charges of the electron. The atom is therefore electrically neutral. However, if you add or take away one more electron from the outer shell of an atom, it becomes either negatively or positively charged. Such charged particles are called ions. The atom that has gained electron is called a negative charge. The atom that has lost electron is called a cation. The atom that has lost electron is called a gain electron is called anion. यहाँ पर वो मिस है anion, ANION, and has a negative charge. The atom that has lost electron is called a cation and has a positive charge. If you combine sodium and chlorine atoms, you can make a chemical substance called sodium chloride, called common salt. But common salt is not made just by mixing the atoms together. They are stuck together with a chemical glue called a bond. All bonding involves the movement of electron from the outermost shell of the atom, but atom use electron to bond in different ways. अच्छा, सबसे पहले इसमें कुछ वर्ड मिसिंग है, तो आप लोगों ने अपनी बुक से ये देखना है, क्योंकि ये जो पैरा है ना, ये बुक का ही पैराग्राफ है, तो ये मिसिंग वर्ड उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे. मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. 2 किस्म की रिएक्शंस होते हैं. जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो निगेटिव चार्ज बन जाता है, और जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है. जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको कहते हैं एनियन या एनॉइन, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको कहते हैं केशन या केटॉइन भी कहते हैं समहाउ लोग. एक सिंपल एग्जांपल है, सोडियम एक आयन है और क्लोरीन एक आयन है. अगर जो दोनों एक साथ मिल जाए तो इससे सोडियम क्लोराइड बनता है, जो कॉमन साल्ट हम यूज़ करते हैं नमक घरों में. तो ये बॉन्डिंग की एक किस्म है सोडियम क्लोराइड की. अब बॉन्ड की 2 किस्म है, एक है आयनिक बॉन्ड और दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड. सो यहाँ पर हम आयनिक बॉन्ड स्टडी करेंगे. व्हेन साल्ट इज मेड द सोडियम एटम गिव एन इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन एटम. When it happened, the atom become ions. The sodium ion has a positive charge. It is a cation. When a chlorine atom gain an electron, it become a chloride ion which has a negative charge. It is called anion. The the ions are attracted to each other very strong because opposite electric charge attract. This is known as ionic bonding. Most ionic bonds are very difficult to break. Ionic compounds are usually solids that will only melt at a very high temperature. अच्छा, मैं सिंपल वर्ड में आपको बताता हूँ आयनिक बॉन्ड के. आयनिक बॉन्ड में 2 एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा गेन करता है. सिंपल, आपने ये कॉन्सेप्ट सीखना है.
जैसे नीचे फिगर में जो विजुअल है आप देख सकते हैं कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। तो अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो ये क्या बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और ये बन जाता है केशन या केटाइन। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो बन जाता है एनाइन, और उस पर चार्ज होगा निगेटिव। नीचे जो फिगर है इसमें जस्ट इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखाई गई है। ये सोडियम फ्लू और दूसरा फ्लोरीन है, ये अलग एग्जांपल है, ये सोडियम क्लोराइड की डायग्राम नहीं है, लेकिन इसमें जस्ट ये मेंशन किया हुआ है कि सोडियम से इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्लोरीन हो दूसरी एलिमेंट जो भी एलिमेंट होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। सिर्फ सोडियम एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा गेन करेगा, सिंपल कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, इसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड। Number two, covalent bond. A lot of atoms do not easily lose or gain electrons to form ionic bond. Instead, they share electron between them. The electrons are shared in pairs called electron pairs. This type of bond is known as a covalent bond. A vast number of compounds have their atoms held together by covalent bond, including most of the chemical found in living things. The molecules formed when the atoms are held together by covalent bond can contain a small number of atoms such as water and carbon dioxide, or a very large number of atoms such as those in polythene or polystyrene. Some elements exist as molecules with the atoms held together by covalent bond. Oxygen gas, for example, is made of molecules each formed from two atoms. अच्छा, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड का मैं आपको इजीली कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि इसमें पेयर शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग। आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, हाइड्रोजन एटम है और फिर क्लोरीन एटम है, तो दो एटम एक से आ जाते हैं, दूसरे से आ जाते हैं, तो इसी कम्बिनेशन से जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बनता है। अच्छा, आयनिक बॉन्ड में क्या था, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता था और एक लूज करता था, लेकिन इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होगी। म्यूचुअल शेयरिंग इसे कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं पेयर्स की शक्ल में, तो इसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। आप एग्जांपल देख सकते हैं ना, अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है तो दोनों पेयर एक दूसरे के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं। फिर क्लोरीन से Cl2 बन रहा है, Cl तो दोनों म्यूचुअल शेयरिंग है। जैसे HH बन रहा है, Cl2 बन रहा है। फिर नीचे दो हाइड्रोजन और फिर चार कार्बन, एक कार्बन है, तो इससे क्या बनता है, CH4 जो कि मीथेन गैस है। H2O किस तरह बनता है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो H2O मीन्स कि कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होगी, दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। आयनिक बॉन्ड में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता था, दूसरा गेन करता था, लेकिन इसमें दोनों म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, सो डेट्स कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, वैलेंसी। वैलेंस तो मैंने आपको बताया था कि वैलेंस जो लास्ट शेल होता है उसको वैलेंस शेल कहते हैं। Atoms are linked together by chemical bond. The number of bonds an atom can form is called valency. अब एक एटम जितने बॉन्ड्स बना सकता है इसको क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। सोडियम की एग्जांपल ले रहे हैं, इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। पोटाशियम की वैलेंसी क्या है, 1। सिल्वर की क्या है, 1। कैल्शियम की क्या है, 2। मैग्नीशियम की क्या है, 2। जिंक की क्या है, 2। एल्यूमिनियम की क्या है, 3। तो ये डिपेंड करता है कि जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में, जो लास्ट शेल होगा, या इसकी वैलेंस शेल से पहले जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पूरे हैं या नहीं पूरे। सो इस पे हम इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये कौन सी जगह पर ये एटम आ रहा है। तो इसमें जस्ट एग्जांपल शो हुई थी। Chemical formula. A chemical formula shows the number of and kinds of atoms contained in the molecule of substance. Hydrogen gas, for example, consists of pair of hydrogen atoms linked together, while oxygen consists of pair of oxygen atoms linked together. It is the smallest particle of the gas carbon dioxide. However, consists of one carbon atom and two oxygen atom. It has the formula of CO. अच्छा, केमिकल फार्मूला ये होता है कि जब दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो इससे एक प्रोडक्ट बनता है, तो उसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। उससे जो फार्मूला आता है प्रोडक्ट से उसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। तो केमिकल फार्मूला को समझने के लिए सबसे पहले आपने ये समझना है कि हाइड्रोजन बहुत से हाइड्रोजन के एटम से बना है, ऑक्सीजन बहुत से ऑक्सीजन के एटम से बना है। फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं तो इससे वाटर बनता है, तो H2O उसका फार्मूला हो गया। फिर जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, तो उसका फार्मूला हुआ कि उसमें कार्बन और ऑक्सीजन दो एटम्स
दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिल गए और उससे कार्बन मोनोऑक्साइड, और जब दो ऑक्सीजन होंगे तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अच्छा, रिमेंबर, अ केमिकल सिंबल रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, अ केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट ऑफ कंपाउंड। तो आपने जस्ट ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एलिमेंट की जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं सिंबल से, तो उसके एक एटम को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन फार्मूला में ये मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप देख सकते हैं नीचे एक फार्मूला है HOOOH, तो ये बेसिकली मॉलिक्यूल्स हैं, ये एटम्स नहीं है। केमिकल फार्मूला ऑफ एलिमेंट्स। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि एलिमेंट्स का केमिकल फार्मूला कैसे होगा। अच्छा, तो अब थोड़ा डिटेल में हम जाएंगे कि एलिमेंट्स के केमिकल फार्मूला कैसे होगा और कंपाउंड का कैसे होगा। For elements like oxygen and hydrogen which exist as molecules, the formula is the symbol of element with the number of atoms in one molecule of element written at the bottom right hand corner of the symbol. So H represent one molecule of hydrogen while O represent one molecule of oxygen. If we see 2H written, it means that there are two separate atoms of hydrogen, while O show that there are two separate atoms of ऑक्सीजन। ये O2 है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। अच्छा, तो केमिकल फार्मूला मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि जब हम एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इसमें हम एटम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर हम किसी एटम को, एलिमेंट को लिखते हैं हाइड्रोजन H को, तो H मीन कि ये एक एटम है। हम 2H लिखते हैं तो इट मीन कि ये दो एटम है। हम H2 लिखते हैं तो ये इट मीन्स कि ये दो एटम है। हम O2 लिखते हैं तो इट मीन्स कि ऑक्सीजन के दो एटम है। तो इसी तरह हम एलिमेंट्स की केमिकल फार्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब हम कंपाउंड की फार्मूले को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। While there are only 117 elements exist, scientists have found are made more than 26 billion different compounds, many of them in the last 80 years or so. You could not possibly learn the names of all these compounds, but if you know the chemical formula of them, you can see what atoms are contained in one molecule of each substance. Chemical formula are the chemist shorthand writing. Water, for example, is a compound of hydrogen and oxygen, so the smallest bit of water that can exist is a molecule of water. This is made up two hydrogen atom linked to one bit oxygen atom. It has the formula of H2O. In a similar way, the carbon dioxide molecule is the smallest bit that can exist. It consists of one atom of carbon linked to two atoms of oxygen and has the formula CO. Note that in the case of both the water and carbon dioxide formulae, the one for the atom of hydrogen and the one for the atom of carbon are never written. Here is the chemical formula for sulfuric acid. अच्छा, आपको जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि दुनिया में कितनी एलिमेंट दरियाफ्त हुए, 117, और इन एलिमेंट्स की कम्बिनेशन से 26 मिलियन डिफरेंट कंपाउंड्स बने हैं। तो आप सबके नाम याद नहीं रख सकते, आप सबको जान नहीं सकते कि कितने हैं, लेकिन अगर आप किसी कंपाउंड को समझना चाहते हैं तो आपने इसकी केमिकल स्ट्रक्चर को देखना होगा। जैसे H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो आप देख सकते हैं कि उसमें H2O है तो उसमें दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। कार्बन मोनोऑक्साइड है तो उसमें एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड है तो एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है। तो ये बेसिकली ये चीज़ें हैं सारी। जब इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट होगा तो इसकी रिवीजन में ये सारी चीज़ें मैं आपको बोर्ड पे सिखाऊंगा एक एक करके, तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा कि इसमें डिफ्रेंसिएशन किस तरह करेंगे। नीचे एक फार्मूला है, आप देख सकते हैं H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, तेज़ाब है ये, स्ट्रॉन्ग। इसमें आप देख सकते हैं H2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो दो एटम्स हाइड्रोजन के हैं, S1 एटम ऑफ सल्फर। हम 1 इसलिए नहीं लिखते, अगर हम S1 की जगह सिर्फ S लिख ले तो इट मीन्स कि इसका मतलब है कि S1, लेकिन हम 1 नहीं लिखते। फिर O4 है तो 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कितना सिंपल है। अब किसी भी कंपाउंड को देखें, दुनिया में 26 मिलियन कंपाउंड है। अब जस्ट फार्मूले को देखें और उसके नंबर ऑफ़ एटम आप खुद से गिन सकते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ एटम्स आए हैं। अच्छा, अब कुछ आयन्स हैं कि कौन सी आयन्स पॉजिटिव होंगे, कौन सी नेगेटिव होंगे, कौन सी डबल चार्ज पे होंगे। तो एक सिंपल फार्मूला है सोडियम क्लोराइड, तो उसमें सोडियम प्लस क्लोरीन, तो सोडियम पॉजिटिव है और क्लोरीन नेगेटिव है। ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि सोडियम इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है इसलिए पॉजिटिव है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए क्या है, नेगेटिव है। फिर नीचे आपकी बुक में ये टेबल दिया हुआ है, आप बुक से भी देख सकते हैं, लेकिन आप इसमें भी है कि अब देखिए सोडियम प्लस है, पोटाशियम प्लस है, सिल्वर प्लस है, हाइड्रोजन प्लस है, NH4 प्लस है, कपरियम, सारी प्लस आ रहे हैं क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन
रिलीज़ कर रहे हैं, ये जितनी भी एटम्स है प्लस ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहे हैं। जिसकी एक वैलेंसी है उस पे 1 लिखा है, जिसकी 2 वैलेंसी है उस पे 2 प्लस लिखा है। अच्छा, अब नेगेटिव आयन फॉर्केशन, तो अब नेगेटिव क्लोरीन जो है, आयोडीन, हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, बायोकार्बोनेट, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, ये नेगेटिव है क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। और कितने एक्सेप्ट कर रहे हैं वैलेंसी से, इसकी नंबर मेंशन है। अगर एक एक्सेप्ट कर रहे हैं तो 1 है, अगर 2 एक्सेप्ट कर रहे हैं तो 2 है। तो इससे इसकी वैलेंसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। अच्छा, ये एक लॉ है, ये तो बहुत एडवांस टॉपिक है। आप आगे जाके फर्स्ट एफएससी लेवल पे ये पढ़ेंगे, लेकिन आपकी बुक में जस्ट इसकी एक डेफिनेशन टाइप दी हुई है, थोड़ी हिस्ट्री तो हम पढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, अ ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटस first put forward the idea of atoms. Chemistry as a true science began in the 18th century with the study of gases and burning. The properties of gases as hydrogen and oxygen were carefully studied, and the use of sensitive weighing machines helped scientists to measure accurately the changes height which occur during chemical changes. By the beginning of the 19th century, two important laws of chemistry had been discovered. One was the law of conservation of matter, which said that matter can neither be created nor destroyed. It is simply changed from one form to another. The second law is called the law of constant composition. यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है, आप बुक से देख सकते हैं। यहाँ पर ये वर्ड है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. This summarizes the result of many experiments and stated that a chemical compound always contain the same constituents in the same proportion. For example, no matter where it comes from or how it was produced, water always consists of 1/9 hydrogen to 8/9 of oxygen by weight. The first experiment evidence for theory that all matter consists of atom. अच्छा, तो जब सबसे पहले ये ग्रीक फिलोसोफर था डेमोक्रेटस, 460 से 361 BC, ये बिफोर क्राइस्ट, उसकी बात है। उसमें 460 में ये पैदा हुआ था, 460, और फिर 361 BC। यहाँ पर ये बड़ा एज इसलिए पहले आया है कि बीफी मीन बिफोर क्रिस्टन, तो इसलिए यहाँ पर ये गलत नहीं है, ये ठीक है। तो ये एक है 460 साल पहले पैदा हुआ था और फिर 361 साल पहले वो फोत हुआ है, इसलिए ये फिगर इस तरह दी हुई है। तो आपने ये समझना है, ये गलत नहीं है, ये ठीक है। अब आपको पता भी होगा कि BC और AD का क्या मतलब है, तो ये आपको समझ आया होगा। अच्छा, तो उन दिनों 18th सेंचुरी में ये तो सबसे पहले आइडिया जो था ना, डेमोक्रेटस ने दिया था इस ईस्वी में, लेकिन 18th सेंचुरी में इस पे बहुत काम हुआ है कि ये किस तरह ये एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। तो इसके लिए एक लॉ बनी थी 19th सेंचुरी में, उसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि उसमें कहते हैं कि मास को ना पैदा कर सकती है, अब ना ख़त्म कर सकती है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जाया जा सकता है। तो ये थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उसके साथ साथ ये एक दूसरी लॉ आई, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इसमें ये था कि जितने भी केमिकल फार्मूलाज बनते हैं उसमें जो कंपोजिशन होती है डिफरेंट एटम्स की, वो कांस्टेंट होती है। ये नहीं कि अगर H2O बन रहा है तो एक जगह पे H2O वाटर बनाएगा और दूसरी जगह पे H3O से वाटर बनेगा। H3O भी वाटर है, लेकिन वो हेवी वाटर है, वो अलग चीज़ है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन सिंपल मीन्स कि यहाँ पर से हर एक फार्मूला जब बनेगा तो उसमें जो इसकी मकदार होगी एटम्स की, वो सेम होगी, कांस्टेंट होगी। वाटर में हमेशा वाटर में हाइड्रोजन की मकदार 1/9 होती है और ऑक्सीजन की मकदार भी 8/9 होती है, उसका जो 8वां हिस्सा होता है। तो इस हिसाब से वाटर बनता है। दूसरे फार्मूलाज भी इसी हिसाब से बनते हैं कि एक कांस्टेंट कंपोजिशन मीन कि ये नहीं है कि वाटर एक जगह पे एक तरह बनेगा, दूसरी जगह पे दूसरी तरह बनेगा। हर जगह पे वाटर का सेम ही रेशो होगा और उसमें एटम्स की मकदार सेम ही होगी। अच्छा, यहाँ पर ये आपका यूनिट ख़त्म हुआ। ये काफ़ी लेंथी था और कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत कंसेप्चुअल, तो इसलिए मैंने आपको 3 वीक्स में किया। इंशाल्लाह जून जुलाई में तो आपका रिवीजन है, तो हम क्लास में जितनी चैप्टर्स हमने पढ़े हम सब की रिवीजन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन आप लोग असाइनमेंट्स पे कोशिश करें कि आप करें ख़ुद से, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। बाकी आपको कोई इशू हो किसी भी पॉइंट पे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी कंसर्न हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। अच्छा,
आपका ये थर्ड असाइनमेंट है इस यूनिट का कि राइट टू कंपाउंड्स फॉर्म बाय कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड पे जो कंपाउंड्स बनते हैं दो के नाम आप लिखिए जस्ट। दूसरा आपका असाइनमेंट है कि राइट 3 केमिकल फार्मूलाज। 3 केमिकल फार्मूलाज लिखिए खुद से, जितनी आपकी मर्जी है कि आप लिख सकते हैं, लेकिन 3 लिखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।